हु प्रिंट्स करेंसी, पहली बात. कैन वी प्रिंट एज मच एज वी वॉन्ट, एंड हु डिसाइड्स टू प्रिंट करेंसी गाइज. इज इट मोदी जी और इज इट RBI? RBI. Okay, very good, very good, very good. Is it Central Bank of America or is it Donald Trump? Who will decide to print the currency? Central Bank. Very good, very good. Modi ji ka there is no role, right? We can't print currency. Ashutosh, okay. चलो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ. अगर मेरे ही पास प्रिंटिंग करेंसी की मशीन है, मेरी खुद की ही मशीन है, आई एम सेइंग फॉर मोदी जी इन इंडिया, इफ आई एम मोदी जी, आई हैव माई मशीन, वाई कांट आई प्रिंट करेंसी एंड जस्ट थ्रो इट अवे टू द पीपल? वाई कांट आई fulfill all my obligations by just print the currency and just give it to people? Why it is not done in this way? Economy will collapse. Okay, who decides to print this currency? You told RBI, right? Now let's come to the main question. Can Modi ji print as much as he wants? Is RBI free to take decisions, guys? चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो. That would be my last question. All the central banks of the country, all the countries and RBI of India, are they free to take decisions? क्या RBI आज़ाद है फैसला लेने को, हर चीज़ के फैसला? हाँ, बस ये वाला फैसला, पेन कहाँ से खरीदना है, कॉपी कहाँ से खरीदनी है, small decisions, day to day decisions. Apart from those, पेन कहाँ से खरीदना है ये तो कर ही सकता आदमी है, राइट? कॉपीज, स्टेशनरी आइटम्स, पार्टी में लंच कहाँ से आएगा? So the thing is that, guys, RBI is free to take decisions only day to day ones. लंच कहाँ से आएगा, टिफिन, पेन कहाँ से आएगा, पेंसिल, स्टेशनरी आइटम्स, बस वो, that's it. But it's only the government, only the finance minister, and now finance minister is very powerful, as you know. So it's only the prime minister now who will be taking all the decisions of finance. So yes, prime minister can print as much currency as he wants, no question asked. RBI is made by an act of government. RBI तो एक एक्ट की वजह से 1935 के, तो उसको कभी भी रेडिकेट कर सकती है गवर्नमेंट. एक एक्ट और निकालो, RBI आउट. So RBI is not having constitutional framework in India. RBI को constitutional power नहीं है, means it can't overcome government. It's the government who decides on the behalf of RBI. RBI is just an executionary body. So can government print as much as they want? Absolutely they can, no question asked. Not in India, throughout the world. ये है थोड़ा सा dilemma वाली बात है. Who prints the currency, RBI or government? Print तो RBI करता है, currency is printed by RBI, but it's the government who decides, who instructs and who directs RBI. No question asked again, right? बाकी signature of ये सब we'll be discussing just in a moment. So I hope this is clear to everybody that RBI is not having that say in the economy. Best example was demonetization. So जब demonetization हुआ था, guys, so was RBI discussed? Was there any discussion between government of India and RBI before demonetization? Yes or no? Yes. Ritik, yes. Okay. Guys, you might have अगर उस टाइम आपने स्पीच सुनी होगी मोदी जी की, तो it was just one day before the RBI governor was told that demonetization will be taking place, and no one in the government was aware of this fact. So RBI was not discussed for demonetization. So it was the government who decided. So this is what I wanted to say, that RBI is not having power, guys. RBI के पास power नहीं है. That we are going to discuss in the coming slides. But I hope this is clear to everybody. Now, what is currency? Story of currency. You might have heard this thing multiple times. पहले होता था barter system कि भाई you take my watch, give me your phone, I give you a phone, you give me your laptop. Exchange. There was no currency as such. आप मुझे चावल दे दो, मैं आपको iPhone दे दूँगा. So you give, but what if I don't need rice? I need gulab jamun in exchange. तो but मुझे राइस से काम चलाना पड़ेगा. That was a drawback of barter system. Means there was no currency. We had to exchange the mediums. It was very difficult to carry. अब चावल की बोरी आप कहाँ उठा के फिरोगे एप्पल के शोरूम में कि चावल रख लो और आईफोन दे दो. It was too difficult. एक ट्रक भर के बोरी देने पड़ेगी. So that was barter system when you were exchanging things. So the question is that क्या बार्टर सिस्टम आज होता है? यस, इट इज़ एप्लीकेबल. बार्टर सिस्टम आज भी होता है. डज इट टेक्स प्लेस बिटवीन द कंट्रीज? यस, एब्सोल्युटली टेक्स प्लेस बिटवीन द कंट्रीज. जैसे व्हेन रशिया यूक्रेन वॉर टुक प्लेस,
तो इंडिया ने अपनी मेडिसिन भेजी थी, उन्होंने अपना क्रूड ऑयल भेजा था। इट वॉज बार्टर बिकॉज करेंसी स्विफ्ट जो था, स्विफ्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग के यूज़ होता है, तो अमेरिका हैड शट डाउन स्विफ्ट फॉर रशिया, और अमेरिका ने रशिया का फॉरेक्स सीज कर दिया था। इट वॉज फ्रोजन, इट वॉज डीमोनेटाइज्ड, अगर ऐसा बोला जाए तो रशिया वॉज नॉट हैविंग डॉलर्स टू स्पेंड। तो वट वी डिड बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम टेक्स प्लेस टुडे एज वेल। सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, नो करेंसी। देन केम द कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी यही हो गया, वही सेम बार्टर वाला कि चावल ले लो, चावल ही करेंसी का काम करेंगे। आई मीन्स इफ यू वांट टू बाय आईफोन यू नीड टू हैव अ राइस, अ बिग कार्टन ऑफ राइस, फुल मे बी बासमती राइस। अगर आपको पानी खरीदना है तो उसमें भी राइस देना पड़ेगा। राइस, सॉल्ट, केटल्स, दे विल एक्ट एज करेंसी। सो then what exactly happened? कोई चावल के पीपल वर एक्सचेंजिंग डिफरेंट कॉमोडिटीज, तो उन्होंने सोचा एक कॉमोडिटी रखते हैं सब चीज़ें एक्सचेंज करने के लिए। सो दिस इज हाउ वन कॉमोडिटी वॉज कंसिडर्ड एज एक्सचेंज यूनिट। ना आफ्टर दैट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट गाइज। आपको कहीं शॉपिंग में जाना है, इतनी बड़ी पीठ में बोरी उठा के जानी पड़ेगी चावल के, टू डू द शॉपिंग स्टफ, सो डिफिकल्ट, राइट? देन केम द मेटेलिक करेंसी, प्रेशियस मेटल, कि चलो गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स, इसको कर लेते हैं करेंसी। गाइज आई विल रियली इंसिस्ट ऑल ऑफ यू, सिंस यू आर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्टूडेंट्स, हर महीने सेव सम मनी, बाय गोल्ड कॉइन्स और बाय सिल्वर कॉइन्स। नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ये करने की आदत डालो ताकि व्हेन यू बिकम ओल्ड, राइट, यू एटलीस्ट गिव दैट 100-200 गोल्ड कॉइन्स टू योर नेक्स्ट कमिंग जनरेशन। इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, नथिंग टू वरी अबाउट, राइट? सो ये बहुत टाइम से चली आ रही है, एंड आई वुड सजेस्ट यू, आवर फर्स्ट क्लास वॉज ऑल्सो ऑन गोल्ड, and that is risk free investment, उसमें कोई रिस्क भी नहीं है, right? So this was precious metal, and various precious metals like gold, silver, they were made coins and they were used as exchange of the commodity. Then comes some interesting stuff. ये थोड़ा सा interesting आया because gold coin was heavy to lift, heavy to carry, means when you are traveling somewhere there was a chance that चोरी हो गया, तो means there were multiple reasons behind it. And one more thing, it was very difficult at that point of time to verify is it a real gold or real silver, because वो भी था उस टाइम में. Then came the goldsmith concept. इसी concept के बाद पेपर करेंसी और फिएट करेंसी आई थी. How it works basically means, for example, I am a goldsmith in your region. मैं आपकी जगह में goldsmith, तो goldsmith होते हैं सुनार जो आपके आसपास होते हैं, सोने की दुकान वाले, people who deal in gold. So what I used to do, for example, let's take example of Harsh, Shrey and Amey. Nice name, Amey. Harsh, Shrey and Amey. Now Harsh, Shrey and Amey are three people. They have good amount of gold with them. तो ये गोल्ड घर में रखना नहीं चाहते, डोंट वांट टू कीप द गोल्ड एट देयर हाउसेस, देयर होम्स. तो इन्होंने क्या किया, दे केम टू मी कि सर गोल्ड आप रख लो और हमें बदले में एक प्रोमिसरी नोट दे दो. उनके पास एक प्रोमिसरी नोट कि हर्ष ने और अमे ने मुझे दे हैड सबमिटेड देयर गोल्ड टू अ गोल्ड स्मिथ एंड आई विल गिव अ प्रोमिसरी नोट. तो ये प्रोमिसरी नोट दे दिया. इसमें लिखा कि हर्ष ने मुझे 20 kg गोल्ड दिया. सो इट इज़ अ प्रोमिसरी नोट. सो हर्ष कैन यूज दिस प्रोमिसरी नोट एनीवेयर एज अ करेंसी. और हर्ष ने ये प्रोमिसरी नोट यूज़ किया और उतने ही वैल्यू में जितनी गोल्ड की थी ही कैन डू द ट्रेड. इट वॉज अ गुड थिंग. एक पेपर, दैट्स इट. ना गोल्ड स्मिथ वॉज वेरी स्मार्ट. अब पूरी क्लास ने अपना सारा गोल्ड मुझे दे दिया, बदले में मैंने सबको एक वो दे दिया, पीस ऑफ पेपर. मीन्स ऑल ऑफ यू सबमिटेड योर गोल्ड टू मी एंड बदले में सब एक पीस ऑफ पेपर देता रहा. ये पीस ऑफ पेपर इट बिकेम ए करेंसी. इट वॉज ए प्रोमिसरी नोट, इट बिकेम अ करेंसी. यू वर एक्सचेंजिंग दिस करेंसी अमंगस्ट योरसेल्फ. ये ले मेरा 1 kg गोल्ड रख, बदले मुझे आईफोन दे दो, ऐसे वैसे करके करेंसी ही, ये करेंसी बन गई बेसिकली. आई वॉज अ वेरी स्मार्ट गाय. मैं था गोल्ड स्मिथ. वट आई डिड, मुझे लगा यार क्लास में फॉर एग्जाम्पल देयर 100 स्टूडेंट्स, राइट. वट आई कैन डू, ज़रूरी नहीं कि 100 ही मैं प्रोमिसरी नोट इशू करूँ. मैं तो 200 कर देता हूँ. किसी को क्या पता लगेगा कि मेरे पास 100 kg गोल्ड है. आई कैन इशू मोर प्रोमिसरी नोट्स ओवर हियर एज वेल. वट आई डिड, मैंने ज़्यादा प्रोमिसरी नोट इशू करना शुरू कर दिया. इवन कुछ अपने से भी खरीदना शुरू कर दिया. Now what happened? This led to paper currency. Earlier, 1 gram of gold was equal to 1 promissory note, but it exceeded. Now 1 gram of gold could be around 10 promissory notes, 20 promissory notes, because अब gold की backing directly proportional नहीं थी. It was not directly proportional. We started from gold, it became a promissory note, then it came to be a fiat currency. Fiat currency का मतलब था कि अब बदले में गोल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट मी कि सर के ऊपर ट्रस्ट है ना, अपने टीचर के ऊपर ट्रस्ट है, तो बस सर ने नोट दिया, प्रोमिसरी चलना चाहिए, दैट्स इट. इट वॉज बेस्ड ऑन ट्रस्ट. बट वट इफ आई गेट इन्वॉल्व इन एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, और मैं ही कुछ घोटाला कर दूँ तो उसमें क्या हुआ, देवर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट टीचर, मतलब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, डिफरेंट पीपल हु वर इशूइंग दीज फिएट करेंसीज. नाउ अब इन सारे लोगों के ऊपर नज़र रखने के लिए देयर शुड बी अ सेंट्रल बैंक.
तब सेंट्रल बैंक का ओरिजिनेशन हुआ कि चलो अब एक सेंट्रल बैंक सब में नजर रखेगा, सब फिएट करेंसी अच्छे से सर्कुलेट कर रहे हैं नहीं, बट दिस एंटायर सिस्टम वाज वर्किंग ऑन ट्रस्ट ओनली, ट्रस्ट गिवन बाय गवर्नमेंट कि दैट वी प्रॉमिस यू कि आपके पैसे इतने रुपए के हैं। अब देयर इज नो नीड टू कीप गोल्ड गाइस, गोल्ड बैकिंग वाज लेफ्ट बिहाइंड, तो सारी दुनिया इस तरफ चली गई। अब यहाँ पे एक चीज और है गाइस, कैन गवर्नमेंट प्रिंट करेंसी? एब्सोल्युटली, एज मच एज दे वांट, नो क्वेश्चन आस्क्ड, और करती है गवर्नमेंट। अमेरिका ने पिछले 4-5 सालों में 60-70% डॉलर जितने आज तक के अभी प्रिंट किए 4-5 साल पहले, दे हैव प्रिंटेड अ लॉट ऑफ करेंसी गाइस। द थिंग इज दैट व्हाई दे आर प्रिंटिंग द करेंसी? अरे मेरा ही पैसा, मैं जो मर्जी करूँ, मेरी मशीन, मेरी कंट्री, तो मैं करेंसी प्रिंट करके सामान खरीद लूँ। एब्सोल्युटली, इट हैपन्स। आई टोल्ड यू मनी सप्लाई, इफ इट इंक्रीजेज इट ब्रिंग्स ग्रोथ। So printing currency can also increase money supply. It is also a way to show growth in the nation. It's not for long run, again it's bubble, एकदम से currency आई कहाँ से आई, right? Now that is why guys, in all the currency notes यहाँ पे लिखा होता है, you might have seen this thing, I promise to pay the bearer sum of 20 rupee. ये लिखा है ना, मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन है। This is a वचन means promise guys, right? But promises are meant to be broken, right? तो क्या ये promise तोड़ा जा सकता है? Absolutely. Now tomorrow if you go to RBI governor's house कि सर मेरे को 20 रुपए के बदले ये दो, but just a promise guys, right? That promise can be broken. So these all currency notes are now promissory notes, just like a bond. So this is a bond, a promissory note. Earlier it was backed by you can say demonetization is the best example, Arushi. जब demonetization हुई थी तो government broke its promise कि आप 500 रुपए का promise हम पीछे ले रहे हैं बस। So who signs? यहाँ पे साइन होता है गवर्नर का इन ऑल द नोट्स ग्रेटर देन 1 रुपी, एंड 1 रुपी में फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। वाई? बिकॉज इट इज़ अ हिस्टोरिकल थिंग, इसको हम संभाल के रख रहे हैं, द म्यूजियम काइंड ऑफ थिंग है, ये हमारा एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है। सो दैट्स वाई वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट। सो दैट्स वाई 1 रुपये का कॉइन और 5 रुपये का बनाने का तो इट्स वेरी कॉस्टली। सो दैट्स वाई फॉर 1 रुपी इट इज़ फॉर फाइनेंस सेक्रेटरी, एंड वी आर जस्ट मेकिंग इट फॉर द सेक ऑफ आवर एंसेस्ट्रल इन्फॉर्मेशन और एंसेस्ट्रल डेटा, उसको संभालने के लिए, जैसे पुराने घर को सारे संभाल के रखते हैं, लाइक दैट। हु मिंट्स दीज कॉइन्स? कॉइन्स कहाँ बनते हैं? दे आर 4 मिंटिंग स्टेशन। दिस इज अ फैक्चुअल डेटा गाइज। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा, दीज आर 4 मिंट्स जहाँ पे कॉइन्स हमारे बनते हैं। सो दिस इज नथिंग टू वरी अबाउट। नाउ द मेन थिंग कम्स, दिस इज कंसेप्चुअल अगेन। फिएट करेंसी जो थी, इट वॉज बेसिकली बैक्ड बाय द प्रॉमिस ओनली, इसमें सिर्फ प्रॉमिस था, राइट? देयर वाज अ सिस्टम कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम जिसको बोलते थे, कि एक फिएट करेंसी, एक नोट, एक करेंसी नोट, फॉर एग्जांपल 100 रुपी का मैंने नोट छापा, आई प्रिंटेड 100 रुपी नोट। इस 100 रुपी नोट को प्रिंट करने से पहले मुझे 100 रुपी का गोल्ड खरीद के रखना पड़ेगा, तभी आरबीआई इसको प्रिंट करेगा। इन इंडिया दिस वॉज ऑल्सो फॉलोड मेनी ईयर्स बैक, कि हमारे पास क्या था कि अगर मुझे 1 लाख रुपी प्रिंट करने, इफ आई वांट टू प्रिंट 1 लाख रुपी, आई हैव टू प्रिंट आई नीड टू बाय 1 लाख रुपी गोल्ड। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1 रुपये का गोल्ड होना ही चाहिए। बट डोंट यू थिंक ऐसा होगा तब तो पॉलिटिशियंस विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द पॉलिटिशियंस टू प्रिंट द करेंसी, गोल्ड खरीदो, परमिशंस लो एंड ऑल दैट। सो पॉलिटिशियंस डोंट लाइक दीज थिंग्स, राइट? एंड इसमें हमारा गोल्ड इंपोर्ट वाज आल्सो गेटिंग इंक्रीज, गोल्ड इंपोर्ट वाज गेटिंग इंक्रीज। इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट भी इट इज आल्सो गेटिंग डैमेज्ड, एंड द ट्रेड डेफिसिट वाज आल्सो इंक्रीजिंग। नाउ व्हाट गवर्नमेंट डिड, गवर्नमेंट स्टार्टेड मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इट मीन्स अगर आपके पास, इफ यू हैव 200 करोड़ रुपी रिजर्व, उसमें 115 करोड़ कुड बी गोल्ड एंड 85 करोड़ आर फॉरेन करेंसीज। इतना पैसा है आपके पास, इफ यू हैव दिस मच बैकअप, यू कैन प्रिंट एज मच एज यू वांट। दिस इज द बेंचमार्क। इफ इट बिकम्स लेस देन 200 crores, first we need to refill this, only then we can print. Now your question was, can government of India print as much as they want? Absolutely, they can print as much as they want until and unless this is full, 200 crore. If it becomes less, then जब तक ये पूरा नहीं भरेगा तब तक they can't print. But if it is 200 crores, they can print as much as they want. They have full freedom. Not only in India, throughout the world, it is same for everybody, right? Proportional reserve system was there, but not now. Throughout the world, they are following the fiat money system only, where everything is working on the trust. International reserve system is that today dollar is kept as forex. लेकिन अभी हुआ क्या है, जो reserves थे हमारे, there is a doubt that had arisen in Russia-Ukraine war. Russia was having forex reserve in dollars. जैसे ही यूक्रेन रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ था,
यूएसए ने रशिया का फॉरेक्स को डिमोनेटाइज कर दिया था. दैट वाज अ बैड मूव. नाउ ऑल द कंट्रीज दे हैव अ डाउट इन देयर माइंड कि कल को अगर यूएसए के साथ हमारा कुछ पंगा हुआ तो यूएसए हमारा फॉरेक्स सारा का सारा कैंसिल कर देगा. दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग. दैट इज़ वाई चाइना हैव परचेज अ लॉट ऑफ गोल्ड. चाइना ने यूएसए के डॉलर को बहुत लिक्विडेट किया है एंड दे हैव स्टार्टेड परचेजिंग गोल्ड अ लॉट. बिकॉज चाइना नोज कल को अगर लड़ाई हुई, उनका फॉरेक्स यूएस डॉलर हुआ तो यूएस कैन कैंसल दैट गाइज, जैसे यूएस ने रशिया के साथ किया. दैट वाज नॉट अ गुड मूव. दैट हैड ब्रोकन ट्रस्ट फॉर मैनी कंट्रीज. So now all the central banks, even RBI had purchased a lot of gold. You might have heard the news few months back that RBI ने यूरोप से बहुत सारा पैसा बहुत सारा गोल्ड यूरोपियन बैंक से इंडिया में वापस मंगवाया. That RBI had transferred a lot of gold from European banks to India, especially from Switzerland. The main reason was this only, because world is moving towards a very negative situation right now. There could be a war and it could be a world war as well. So हमारे forex में पैसे फंस ना जाए. That is the reason. Guys, I hope everyone is with me. Any doubts? Everyone is alive, energetic. किसी को नींद नहीं आ रही? Okay. I hope your lunch was quite light. You are not feeling lethargic or lazy right now. नींद तो नहीं आ रही खाना खाने के बाद किसी को? So have you consumed your meal? Or still waiting? Okay. Fresh and alive. Thank you so much, guys. Ajay is waiting for the food. Ajay, class mein, I hope you are not imagining about pizza and burgers. Alright guys, let's continue. So what will happen if we print the currency, guys? If you ask me, short term में क्या होगा अगर मैं currency print करता हूँ? अच्छा, dollar is not pegged with gold anymore. The same reason, Shrijan, why dollar is not pegged with gold anymore. हाँ, लेकिन चाइना में ना एक चीज़ है, Chinese currency is pegged. चाइनीज़ करेंसी तो बिल्कुल चाइना की रख लो. फॉरगॉट द कंट्रीज नेम यार. चलो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना और मे बी द प्रीवियस एग्जांपल ऑफ हांगकांग. राइट नाउ दे हैड पेग्ड देयर करेंसी. पेग्ड करेंसी में क्या रहता है? वन पेग्ड करेंसी ऑफ एनी कंट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉरेक्स. हमें ऐसा नहीं है. मीन्स इफ आई प्रिंट 1 रुपी तो मुझे आई कैन प्रिंट एज मच एज आई वांट. बट इफ द करेंसी इज पेग्ड, राइट, तो वहाँ पे प्रिंटिंग ऑफ वन करेंसी ऑफ दैट कंट्री, फॉर एग्जांपल 1 युआन रख लो अगर फॉर एग्जांपल, तो उनको उतना ही डॉलर रखना पड़ता है. वंस यू पैक योर करेंसी यू हैव टू कीप इक्वलेंट अमाउंट ऑफ 100% सिमिलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ फॉरेक्स विद योरसेल्फ. गोल्ड को पैक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ. मीन्स इट्स वी हैव मूव्ड, हम आगे बढ़ चुके हैं उससे बहुत ज़्यादा. वी हैव मूव्ड क्वाइट, इट्स एवोल्यूशन, हम आगे की तरफ बढ़ रहे. वी आर मूविंग further and further. We are evolving actually. Now coming to the printing of the currency. If the currency is printed, yes, it will bring economic growth. Absolutely. It will bring employment in the short run. अगर मैं currency print करता हूँ, yes, absolutely, it will bring growth. It will bring demand. It will bring employment. This does happen. ये होता है. You might have heard helicopter money. Helicopter money का literal meaning ये होता है कि they will print the currency and they will just throw away the currency via using helicopters. It is not being used, but it is a concept. कि this concept is used in the countries like North America, Canada, Europe, because these countries have very less population. तो वहाँ पे ये concept चल जाएगा, right? It will increase the money supply. Absolutely, it will. Now the thing is that in the long run, it will affect inflation. It will increase the inflation that will convert into hyperinflation. It is just like a genie. एक बार निकल गया bottle से, it will be too difficult to control it, right? Purchasing power of the currency will go down, except China. We will be discussing in forex. Purchasing power of the currency will go down. It will affect the exchange rate system. Exchange rate means if you are doing that एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, आपने परचेज ऑर्डर इशू किया, करेंसी चेंज होगी तो फिर से परचेज ऑर्डर चेंज करने पड़ेंगे. परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, दोज विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड इफ इट इज़ टू फ्रीक्वेंट, राइट? एंड इट विल हैव अ ग्लोबल इम्पैक्ट. everyone is fed up with the Chinese tactics of doing business. चाइना में क्या करते हैं वो लोग? इतना बल्क में प्रोड्यूस करते हैं गाइज. मैं दो आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, वट एवर ही इज डूइंग इज सो एब्रप्ट, he is affecting the entire economy. But guys, I want to ask just one thing. चाइना पंप एंड डंप बहुत करता है. डंपिंग ड्यूटी चाइना के ऊपर ही लगती है और किसी कंट्री के ऊपर नहीं लगती, बट चाइना डज. चाइना अगर मान लो मोबाइल फ़ोन बनाएगा तो चाइना इतने मोबाइल फ़ोन बना लेगा कि वो 1 साल, 5 साल, 10 साल तक इतनी इन्वेंट्री होगी
फिर टेक्नोलॉजी चेंज, तो पिछली इन्वेंट्री का क्या करेंगे, डंप कर देगा. मीन्स इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन मोबाइल फोन वॉज 100 रुपीज, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, चाइना उसको 10 रुपये में डंप कर देगा. इट मीन्स मेरे कंट्री में जो जेन्युइनली आईफोन्स बना रहा होगा 100-200 में, वो 10 रुपये में आईफोन मिल रहा है उसको. जस्ट इमेजिन, इट कैन इरेडिकेट, इट कैन किल ऑल द डोमेस्टिक बिजनेसेस. चाइना ना डंपिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है. इट्स वेरी बैड स्ट्रेटजी, वेरी बैड स्ट्रेटजी, एंड दैट इफेक्ट्स द एंटायर डोमेस्टिक मार्केट गाइज. मतलब कहाँ 100 रुपये में आप चीज़ बेचो, कहाँ 10 रुपये में वो चीज़ बेच रहे हो, डंपिंग इट कोड़ी के भाव में, पेनीज दे कैन सेल द प्रोडक्ट्स बिकॉज दे प्रोड्यूस इन सच ह्यूज क्वान्टिटीज. उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. राइट नाउ कमिंग, दैट इज वाई आई वुड से, though it's going very bad nowadays, but I can't say anything on this. Means both the parties are doing what they can to save their countries, and we will be discussing these trade wars in the next coming classes. That would be great if we discussing the forex. So can we have zero interest rates, guys? Can we have zero interest rates? जैसे अभी RBI ने हमारा 0.25 BPS कम किया है बेस पॉइंट्स, तो क्या गिरते 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 इंटरेस्ट रेट जीरो में आ सकता है क्या? इज इट सो? or near to zero? Yes guys, it can come actually. The same thing happened in deflation. Japan is facing deflation for quite a long time. अब उनका इंटरेस्ट रेट नीचे गिरते 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 इतना नीचे आ गया कि अब इससे नीचे तो क्या ही करेंगे, इससे नीचे तो फिर जीरो ही आएगा. So yes, when the country is facing deflation, it becomes very difficult to bring it back, guys. So yes, interest rates can become zero as well. And there are few helicopter money, I already told you, right? That you really literally you throw the money, print the money and just throw it to bring a buzz in the economy. All right? Now, characteristics of currency. See, ये तो आपने पढ़ा होगा, but this is important to understand. It should be medium of exchange, okay? Store of value means you can transfer or you can inherit it to the next generation. That is store of value. It should be divisible. 500, 100, 10 रुपए, 5 रुपए. It should be lightweight, easy to carry. It should be difficult to counterfeit, मतलब नकली बनाना मुश्किल हो. It should be measurable. I want to ask one thing from you. Are these all traits fulfilled by cryptocurrency? Just give me yes or no. Guys, how no? It is yes. It is a medium of exchange. It can become a medium of exchange अगर गवर्नमेंट अलाउ करेगी. Yes. Is it a store of value? People trust it. Yes. Means can you inherit it to next generation? Yes. Is it divisible? Yes. 0.1 Bitcoin, 0.2 Bitcoin? Yes. Is it lightweight? Lightweight क्या है? Exist electronic format में तो absolutely lightweight. Difficult to counterfeit? Impossible to counterfeit, guys, because it is blockchain. Is it measurable? Yes. So is it a chance that crypto can overcome this all currency and monetary policy? ये सब side हो जाएगा? It can. तभी गवर्नमेंट इज सो स्केर्ड, सभी बैन लगा दिया उसके ऊपर, बिकॉज इट कैन ओवरकम ऑल द थिंग्स गाइज. दैट वी विल डिस्कस इन द कमिंग क्लास, बट आई जस्ट गिव यू अ हिंट. यस, इट कैन बी अ मोड ऑफ करेंसी एंड इट इज अ मोड ऑफ करेंसी इन मेनी कंट्रीज. इक्वाडोर ने तो कर दिया शायद स्टार्ट. इक्वाडोर एंड वन ऑफ यूरोपियन कंट्री हैड एक्सेप्टेड इट एज अ लीगल टेंडर. कर लिया है वहाँ पे, क्रिप्टो करेंसी में काम हो रहा है. यूएसए में भी इट इज़ रेगुलराइज्ड बेसिकली. अच्छा, आई हैव नॉट सीन कल की